سے شفٹ کر رہا ہے انڈیا میں. $100 بلین انویسٹمنٹ کا سوئٹزرلینڈ نے جو ہے اعلان کر دیا, اور یہ کئی سالوں میں جو ہے نہیں بلکہ کچھ سالوں کے اندر جو ہے $100 بلین کی انویسٹمنٹ جو ہے سوئٹزرلینڈ انڈیا کے اندر کرنے جا رہا ہے. سب سے پہلے یہ کہ آپ دیکھ لیں ماضی قریب میں نا کتنی بڑی ٹیک کمپنیاں, چاہے وہ ایپل ہو, بل گیٹس ہو, جیسے بل گیٹس اسکالرشپ وغیرہ انڈیا میں انٹروڈیوس کرائے نا. اب ہمارا لمحہ فکریہ دیکھ لے کہ پاکستان جو ہے وہ البیک کی محنت کر رہا ہے کہ آپ البیک ریسٹورنٹ ادھر کھول دیں. البیک ریسٹورنٹ آلریڈی ہمارے ہاں کسی چیزوں کی کمی آلریڈی نہیں ہے. تو کسی ٹیک کمپنی نے میرے خیال میں پچھلے 10 سالوں میں نا کوئی بھی جو ہے پاکستانی مارکیٹ کو کیپچر نہیں کیا. اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ انڈیا کیوں اور پاکستان کیوں نہیں. اس کی دو ہی وجہ ہے. اس کی دو ہی وجہ جو سب سے زیادہ ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جو پچھلے ایک مہینے میں حکومت نے اور اپوزیشن نے اور سینٹ وغیرہ میں جو تماشا بنایا ہوا تھا, جو مچھلی منڈی بنائی ہوئی تھی, تو اس ماحول میں کون آ کے ادھر انویسٹمنٹ کرے گا. صحیح ہو گیا, کریکٹ ہے بالکل. ہاں, اس میں یہ ہے کہ ایک دوسرے پہ مطلب ہے الزامات لگانا. سینیٹر کہہ رہا ہے مجھے اغوا کر لیا گیا, فلانا کہہ رہا ہے مجھے نہیں اغوا کیا گیا, اس کا پریشر تھا, اس کا پریشر تھا. تو اس ماحول میں آج کل کو وہ میڈیا تو نہیں ہے کہ اس کو حکومت کنٹرول کرے یا صرف پی ٹی وی ہے. آج کل تو سوشل میڈیا ہے, بلکہ سٹیزن جرنلزم ہے. ہر کسی کے پاس موبائل ہے, ہر کسی کے پاس کیمرہ ہے, مائک ہے. وہ جو ہے ان چیزوں تک اپروچ ایزی ہو گئی ہے, اور یہ چیزیں میٹر کرتی ہے. اب جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیاز ہے وہ بھی سٹیزن جرنلزم کو دیکھ کے وہ رپورٹ اٹھا کے وہ ویڈیوز وغیرہ وائرل کرتی ہے, چاہے وہ آپ کے سینیٹرز کی ہو, اس کی طرف سے ہو. اب انڈیا میں کیا ہے, اب انڈیا میں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں صرف مشرف دور کے بعد 5-6 یونیورسٹیاں بنی ہیں. اس سے پہلے صرف ہماری 3-4 یونیورسٹیاں تھیں, جو یو ٹی لاہور, یو ٹی ٹیکسلا اور اس طرح این ای ڈی کراچی, جو پرانی یونیورسٹی ہے. آپ انڈیا کے اندازہ لگائیں کہ ایک آئی آئی ٹی کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ جاب سے مطلب ہے انجینئرنگ سے فارغ ہوتے نہیں کہ وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں لگ جاتا ہے. آئی آئی ٹی ممبئی ہے, آئی آئی ٹی دلی ہے, آئی آئی ٹی کارخپور ہے, اور مختلف قسم کی یونیورسٹی ہمارے امریکہ میں بھی کھل رہی ہیں, ایگزیکٹلی امریکہ میں بھی اس کے کیمپس جا رہے ہیں. تو مطلب یہ مطلب ہے کہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اب ہر ملک چاہتا ہے کہ یار اس کو جو مانگتا ہے انڈیا کو دو. اس کے پاس پیسے ہیں, اس کے پاس ریسورسز ہیں, تو یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ چیز جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کو ایک چیز نظر آ رہی ہے. हेलो फ्रेंड, चैन स्विट्जरलैंड दिग्गज कंपनी भारत में निवेश बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में निवेश का यह आंकड़ा $100 बिलियन को छू सकता. पहले स्विच कंपनी झुकाव चीन की तरफ था. मार्च महीने में यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप टीपीपी पर हस्ताक्षर हुआ था. यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का सबसे बड़ा देश है स्विट्जरलैंड. एक बार इस डील को मंजूरी मिल गई तो उसके बाद भारत में स्विट्जरलैंड निवेश की बात आ सकते हैं. चले इस टॉपिक पे आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखें. सर, क्या लगता है आपको इंडिया अपने कल्चर को अक्सर प्रमोट करता हुआ दिखाई देता है? क्या वजह है कि हर कोई इजीली जो है बआसानी इंडिया के रंग में रंग जाता है? हालांकि पाकिस्तान के भी त्यौहार आते हैं लेकिन उस तरह ओवरऑल दुनिया में सेलिब्रेट नहीं किया जाता जिस तरह इंडिया के त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है. पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की जाती है. इसमें मैं ये कहूँगा कि इंडियन रिलीजन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है. देखें, योगा सेंटर हैं पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया में इंडिया का योगा जो है वो मशहूर है. आपकी तरजीहात क्या है? हम जो है किसी मुल्क का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो हम उनको कहते हैं, मिन्नत कर रहे हैं कि आप अलबेक रेस्टोरेंट जो है हमें खाने पीने से सोच हमारी निकलती नहीं है. सर, हम बात कर रहे हैं $10 बिलियन की नहीं, $100 बिलियन की. एक वक्त था जब इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो नहीं करता था, वहां पर भी कोई 10-20 बिलियन डॉलर लगाने को तैयार नहीं था. आज $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बिना मांगे जो है इंडिया के अंदर आ रही है. साथ साथ एक स्टेटमेंट भी आ रही है स्विट्जरलैंड की, सेम जो जर्मनी ने बोली, सेम जो स्पेन ने बोली, कि हम अपनी जो बिजनेस मार्केट है वो चाइना से शिफ्ट करें. देखिए, चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, चाइना ने अपनी ट्रांसपोर्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से दुनिया ने उसको फेवरेबल मार्केट मांगना. लेकिन आज जो है लोग इंडिया को प्रेफर कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स प्रेफर कर रही हैं. $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पर ब्रिक्स में देखे कितने हाईलाइट रहे. मिसेस के दो रीजन है ना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या टेक कंपनी या प्राइवेटाइजेशन के लिए आप ग्राउंड बनाते हो. अमेरिका को डर है इंडिया का कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी ना बन जाए, नंबर 1 पे ना जाए. क्या इस तरह अमेरिका को पाकिस्तान का डर है? पाकिस्तान का क्या खतरा? पाकिस्तान आप गरीब मुल्क है. पाकिस्तान ने क्या आंख नहीं दिखा सकता. पाकिस्तान किसी के खिलाफ जो है ना कोई चीज क्या बोल सकता है. पाकिस्तान के हर बच्चा, हर बड़ा तो मकरूज है. इस टाइम पर जो भारत है ना, भारत की कंडीशन बहुत अच्छी है क्योंकि वो मुल्क हर चीज वो खुद बना रहे हैं. तो ये है कि जो
ऐसे इंडिया चलता रहा ना जैसे अब चल रहा है तो वो जो अमेरिका से बहुत अच्छा है, अमेरिका की वो धज्जियां उड़ा देगा कि वो अमेरिका के हर चीज हाथ से अमेरिका से आगे चला जाएगा। अभी आप अंदाजा लगा लें कि हमारे जितनी भी फ्रीलांसर्स हैं पिछले 2 महीनों में उनके मतलब लाखों डॉलर हमारा नुकसान हो गया। क्यों? सही है। क्योंकि नेट नहीं आ रहा। सही है। आपका जो है सैटेलाइट नहीं है। हाँ। आप उसको देख ले, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया पहुंच गई है। क्यों? पाकिस्तान में क्यों नहीं पहुंच रही? ये वाला मसला है, वो वाला मसला है, वो लाइसेंस नहीं मिल रहा, ये लाइसेंस नहीं मिल रहा। हालांकि क्यूबा जैसे छोटा मुल्क, लग्जमबर्ग जैसे छोटा मुल्क, उधर स्टारलिंक की सहूलत है, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में क्या है, पीटीए ने लाइसेंस नहीं दिया, उन्होंने लाइसेंस नहीं दिया, ये मुश्किलात है, वो मुश्किलात है। हाँ। ऊपर से फायरवॉल वगैरह ये सारी चीज लगा के और भी जो है मार्केट को वो लोग खराब कर रहे हैं। तो इंडिया में एक ये है कि जो आईटी सेक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, उनके लिए ग्राउंड बना हुआ है, सिक्योरिटी है, उधर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक है, आप अंदाजा लगा ले कि ये उनका 1 अरब 25 या 30 करोड़ की आबादी में इतने आराम से इलेक्शन हो गए और पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो उनकी पोर्टफोलियोज तो वगैरह बड़ा बन गई, fair रहता तो है। बड़ा फेयर रहता है। हाँ, इधर बिल्कुल। हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन चल रही होती है और उसके अलावा जो है इल्जाम तराशियाँ स्टार्ट हो जाती हमारे है रैगिंग इलेक्शन की, खत्म हो जाते हैं और फिर भी जो है वो बैलेट पेपर छप रहे होते हैं। बैलेट पेपर जब रहे होते हैं। तो हम वापस अपनी सवाल की तरफ आते हैं कि हाँ। इंडिया क्यों Attractive market बन चुकी है world के लिए, हाँ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ठीक है। और जो टेलीकॉम सेक्टर या मतलब है कि आईटी सेक्टर के लिए जो बेसिक चीजें, बेसिक फैक्टर्स होती है वो अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा उनकी मैन पावर है जो इजीली अवेलेबल है। आप किसी भी गल्फ कंट्री में जाए और या जो है यूरोप किसी भी कंट्री का आप डेटा उठा के देख ले तो उधर सबसे ज्यादा पहले इंडियन को प्रेफर करते हैं। क्यों? ये एक तो वो है कि वो मतलब है कि एक अच्छे से कल्चर से निकला होता है, ठीक हो गया, और उनकी अच्छी खासी पॉलिशिंग और स्किल भी है ना, एजुकेशन के साथ स्किल भी दे रहे हैं स्किल ना। भी दे रहे हैं, स्किल भी प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हुए हैं, वो इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस डील कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये देखिए 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है और हमारी इंडिया के साथ बनती ही नहीं है। बिल्कुल। अगर स्पेन और इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रोमन एम्पायर के टाइम पे जो है ना समुद्री रास्ते के जरिए तब भी लोग आते थे। जैसे है वास्को डे गामा था, कोलंबस था, तो वो भी इंडिया से मसाले वगैरह ये चीज़ें करते थे। जब ब्रिटिश एम्पायर आया और इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी बनी और स्पेन जो है वो साउथ अमेरिका में उनकी काफ़ी कॉलोनीज थी, जैसे ब्राज़ील है, वो वाला पार्ट जो है ना, तब हालात काफ़ी बुरे हुए थे। अब रिसेंटली अगर देखा जाए पिछले 20 साल में स्पेन का कोई स्टेट हेड इंडिया का विजिट नहीं किया, अब जाके किया है। ठीक है, 18 साल के बाद उनके प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 2017 में नरेंद्र मोदी मेरे ख्याल में गए थे स्पेन। और अब जो स्पेन का स्टेट हेड है वो पहले 1 महीना पहले चाइना आया, अब वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं। तो एशिया में भी वो डिफरेंट मार्केट सर्च कर रहे हैं और आपस में कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं। दे रहे। आप अब हमारा वो जो बिल गेट है वो पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए फंड दे रहा है और बिल गेट जो है वो इंडिया में स्कॉलरशिप दे रहा है। तो आप अंदाजा लगाए कि वो अभी हमारे बच्चे ठीक कर रहे हैं और वो जो है उनके बच्चों को बड़ा कर रहा है। तो उसमें काफी फर्क होगा, फिर यही इश्यूज और मसले मसाइल होंगे।